So, hello everyone. Today, I'm back at learning an important tools in economic, which is known as uh, uh, functional equations. So, in this, we'll be starting off with what an equation is and how economics depends on it, and then we'll later on proceed to work with straight lines and their equations. So, moving on to the next slide, equation is basically a line or an algebraic expression which gives a functional variable relationship between a dependent and an independent variable. All right. So let's say that you have to predict the stock prices of a data based on the production of that particular material. Like you have been given that a material that is being highly sought after. All right, the demand is high. So what will the price will of that material will be? So based on that, you can say that if the demand is high, the price might get high. But if the demand is sorry, if the supply is also high, then price will be equal. Okay, so basically it just say that you are predicting a variable which is price based on demand and supply, which are two independent variables. Okay, so the way in which we mathematically represent those dependent variable or independent variable is known as an equation. All right. So the term functional perform refers to a specific relationship between the variables of the equation. Let's say that with the supply, the price, if the supply is increasing, the price decreases. So with every increase in supply, there is a negative price trend. So you can tend it as y is equals to minus x, where x is the price and y is the supply. Sorry, y is the price and x is the supply. So in that particular case, you will see that as the supply will increase, the price will be going down. Okay, so here is an example where you have to suppose that a particular garment in a factory, uh, each worker employed three shirts every day. Okay, so how many shirts will be okay, let's start it again. All right. So in this example, let's say there is a factory in which there are n employees, all right, and every employee in a day must stitch three shirts. Okay, so let's say that you have to derive that how many shirts will be produced in 30 days or 60 days or 90 days, or let's say O number of days. Okay, let's say n number of days particularly. So it will depend that how many employees are working in there. Okay, like let's say कि सी यू हैव कि आपके पास अ, एक एम्प्लॉय आपको टी शर्ट बना के दे रहा है, ठीक है? तो हाउ मेनी एम्प्लॉयज शुड यू एम्प्लॉय? कि आपको एक दिन में एन नंबर ऑफ शर्ट मिलेगा, राइट? तो आंसर विल बी बेसिकली एन बाई थ्री। बट यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ शर्ट्स ओ एंड एम्प्लॉयज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एन। तो ओ क्या होगा? ओ विल बी बेसिकली थ्री टाइम्स एन। ठीक है? हम्म, cool. Starting off to the next slide. Let's say you are given a functional relationship between a household income and consumption expenditure. Okay. So आपका जो consumption है वो आपका बेसिक रुपीज वाई पे हो रहा है प्लस 0.8 वाई वेरिएबल हो रहा है, वो आपका इनकम है। तो आप देख रहे हो कि आपका अगर इनकम 1000 रुपये है तो यू आर एक्सपेंडिंग ऑल 1000 रुपीज इनटू इट। ठीक है, लाइक अगर आपका इनकम लेट से 2000 है, okay, your income is 2000, so what will be your expenditure? Or consumption will be 0.8 into 2000, that will be 1600 plus 1000, that will be 2600। ठीक है, अगर आपका वही इनकम 6000 होगा तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 4800, ये टर्म। ठीक है, एंड दिस टर्म विल फाइनली बिकम 5800, विच इज डी पॉइंट। ठीक है, दिस इज द, अगर आप ऐसे तीन या चार पॉइंट्स को ऐसे आप ज्वाइन करोगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा ग्राफ का, which will tend to be a straight line. Okay, now before introduction to straight lines, I'll tell you what straight lines are. So straight lines are basically they are the fundamental concept of economics, as they represent various relationship between variables. They help us to visualize the different trends, correlation, and economic behavior. Let's say कि the one thing is going up, so other thing will be going down, or let's say the other thing will be totally constant. Okay,
let's say that here you have price, okay, in rupees, and you here you have demand, okay, D E M, assume it is a demand. So see, if the demand is low, then the price will also be low, but it won't be zero, right? But let's say if the demand is high, the price of that product will also be increasing, and it will most likely be increasing in a straight line. So this is how demand and supply graph will be presenting. Okay, let's say there is again, this is your price, okay, R, and there is supply, U, P, P. Please understand it. Okay, so let's say that here your initially, let's say that the supply was high, okay, so price will be less. Let's say that supply has, okay, let's see, oh हाँ, okay, let's say the supply is less, okay, supply इस हिसाब से आप लेस है, काफी ज़्यादा लेस है, आपका जो प्राइस होगा वो हाई होगा, ठीक है, जैसे जैसे आप सप्लाई बढ़ाओगे आपका प्राइस will start falling. So this is demand and supply. Just a simple example there. Okay, now let's get started with the equation of a straight line. So a straight line can be represented by an equation y is equals to mx plus c, where y is the dependent variable, x is the independent variable, m is the slope, and c is basically the y-intercept. Okay, so let me tell you what slope is. So basically slope represent the rate of change of that line. ठीक है? So it is basically कि how much the y unit has changed with respect to x in a given amount of time. So the formula of m will be change in y by change of x. ठीक है? It can also be written as delta y upon delta x. Okay. Now see, here I'll give you a example y is equals to x. ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे देखोगे दो पॉइंट्स ले लेते हैं, ठीक है, लेट्स सी, यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया, यहाँ पे हमने दूसरा पॉइंट लिया, ठीक है, और लेट्स से ये पॉइंट एक हमने लिया 2, ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, एंड दिस पॉइंट वी टेक इट एज 3, ठीक है, अभी y क्या होगा, अगर x यहाँ पे आप प्लग करते हो इस इक्वेशन में तो y विल ऑल्सो बी 2, ओके, सो दिस पॉइंट which will be, you know, uh, parallel to this line will also be 2, ठीक है, एंड दिस पॉइंट जो y एक्सिस का क्या होगा, इट विल, जब आप इसको पॉइंट 3 वैल्यू को यहाँ पे प्लग करोगे x के अंदर, ठीक है, दिस पॉइंट विल कम आउट टू बी 3. अब नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, लेट्स से यू हैव टू कैलकुलेट स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है, अब इसको एक्सटेंड कर दो, लाइक यू एक्सटेंड इट हियर एंड यू एक्सटेंड इट हियर, ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो चेंज इन y कितना होगा, y आपका चेंज हुआ इतना, तो हो गया आपका डेल्टा y, ठीक है, चेंज इन x कितना हो रहा है आपका, ओनली दिस मच, ठीक है, ये होगा आपका डेल्टा x, ठीक है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा आपका m, मैंने बोला था डेल्टा y बाय डेल्टा x, डेल्टा y क्या हो गया 3 माइनस 2 बाई 3 माइनस 2, दैट विल बी इक्वल्स टू 1, ठीक है, आपका स्लोप हो गया m इक्वल्स टू 1, ठीक है, एंड देखो हमने इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बोला था, y इज इक्वल्स टू mx, ठीक है, m x प्लस c, यहाँ पे आपका c क्या है, c इज 0, ठीक है, मैं बताऊंगा इंटरसेप्ट का ऑप्शन क्या होता है नेक्स्ट वाली स्लाइड में, ठीक है, यहाँ पे आपका m क्या है, यहाँ पे आपका m ऑलरेडी 1 था, ठीक है, और यहाँ से जब आपने कैलकुलेट किया देन ऑल्सो यू सी द स्लोप कम्स आउट टू बी 1,
ओके, नाउ लेट्स से कि ये एक दूसरा इक्वेशन है, लेट्स से दिस इज, जैसे रब कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। और लेट्स से जो एंगल है इट्स नॉट 45 डिग्री, ओके, लेट्स से दिस एंगल इज 30 डिग्री, जस्ट एग्जांपल, लाइक वी कैन ड्रॉ डिफरेंट एग्जांपल्स, राइट। तो अभी ये y, लेट्स से दिस एंगल हमें अननोन है फॉर नाउ, ठीक है, लेट्स जस्ट से this is some random line, angle unknown है, but you are given the equation like it is not y equals to x, it will be y is equals to 2x, ठीक है। so let's say कि आप यहाँ पे 2 पॉइंट ले रहे हो, यहाँ पे you take 2, then you take 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लाइन पे पॉइंट क्या हो जाएंगे, एक तो ये पॉइंट होगा आपका, ठीक है, दिस पॉइंट हियर, एक पॉइंट होगा आपका दिस वन, व्हाटएवर बी दैट लाइन, ठीक है। अभी y का वैल्यू क्या क्या होगा, अगर आप यहाँ पे को प्लग कर रहे हो इस इक्वेशन में, ठीक है, 2 into 2 it will be 4, so this point comes out to be 4, ठीक है। अगर आप 3 को प्लग कर रहे हो इस इक्वेशन में, तो यहाँ पे जो y का जो आपका वैल्यू होगा it will be 6, ठीक है। नाउ लेट्स कैलकुलेट ये स्लोप, तो आपने क्या किया, इसे आपने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, इसे आपने एक्सटेंड कर दिया, इसे भी आपने एक्सटेंड कर दिया, यू एक्सटेंड दिस एज वेल, ठीक है। ये पॉइंट है आपका 6, ये पॉइंट है आपका 4, यहाँ पे डिफरेंस क्या आया, 4 minus 6 that will be 2, यहाँ पे डिफरेंस क्या आया, 2 minus 3 this will be 1, ठीक है। m का वैल्यू क्या हुआ, it will be डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, डेल्टा x क्या हो गया, 2 अपॉन 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2। लाइन का इक्वेशन क्या था, लाइन का इक्वेशन था y इज इक्वल्स टू m x प्लस c, तो यहाँ पे देखोगे कि y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 0, तो m का वैल्यू के वैल्यू से मैच कर रहा है, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, हियर दिस इज द सेम थिंग व्हिच आई जस्ट टोल्ड यू, कि आपका ये जो डेल्टा p है डेल्टा q, ठीक है, डेल्टा y बाई डेल्टा x, ये आपको हर जगह कैलकुलेट करना है, ठीक है। बट देखना जब ये लाइन आपका रिसीड हो रहा है, ठीक है, आपको जो डेल्टा q का वैल्यू होगा इट विल बी नेगेटिव, मतलब वैल्यू आपका बड़ा होगा, जैसे कि लेट्स से यहाँ पे इक्वेशन लेते हैं, ठीक है, ये आपका 2 वैल्यू होगा, ले लो, ये आपका 2 वैल्यू ले लो, ठीक है, लेट्स से ये 1 ले लिया, ये 2 ले लिया, और अभी के लिए ये आप कोई दूसरा वैल्यू ले लो, ठीक है, लेट्स से ये आपका ये 5 ले लो, ये 4 ले लो, जस्ट एन एग्जांपल, ओके। तो आप देखो अभी आपका x इंटरसेप्ट क्या हो गया, 2 minus 1, तो डेल्टा q इज 1, सॉरी डेल्टा x, ठीक है, डेल्टा y का वैल्यू क्या होगा, देखो सबसे पहले आपने क्या लिया है, 2 लिया है, राइट, इसमें आपने क्या किया है, 2 minus 1, 2 के करस्पॉन्डिंग क्या आ रहा था, 4 आ रहा था, राइट, 4, ठीक है, और 1 के करस्पॉन्डिंग में क्या आ रहा था, 5 आ रहा था, -5, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आएगा डेल्टा y इज इक्वल्स टू -1 आएगा, ठीक है, और स्लोप क्या है, इट विल बी डेल्टा y बाय डेल्टा x, डेल y
अपॉन del x which comes out to be -1/1 is equals to -1। एक अगर आप देखोगे कि स्लोप इस तरह से आपका रिसीड जा रहा है, अगर आपका रिग्रेसिंग स्लोप जा रहा है, उसका जो m का वैल्यू होगा इट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द y एक्सिस, y इंटरसेप्ट और c, ठीक है। तो जो हमने इक्वेशन लिया था, ठीक है, लेट्स से कि आपका जो इक्वेशन है ये आपका अभी ओरिजिन से जा रहा है, ठीक है। तो आपका जो c का मतलब होता है, y इंटरसेप्ट का जो मतलब होता है, इट बेसिकली मीन्स कि ये जो लाइन है ये y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, ठीक है। तो लेट्स, अभी आपने जो y इज इक्वल्स टू x का इक्वेशन देखा था, ठीक है, इसमें देयर वाज नो c टर्म बिकॉज the graph, the line, it was passing through origin, ठीक है। लेट्स से y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 होता, ठीक है। तो व्हाट इट विल डू इज, ये जो आपका लाइन होता ना, इट वुड हैव बीन पासिंग थ्रू 1, लाइक स्लोप आपका सेम होता, ठीक है। इट वुड हैव बीन लाइक ये 45 डिग्री ओनली, y is equals to x plus 1। so this will be the equation, like ये आपको x equals to sorry y equals to 1 पे पास करेगा, ठीक है। आप इसमें ये y equals to 0 की वैल्यू डाल के देखो तो आपको वैल्यू दिखा भी जाएगा। हाँ, सो अगर लेट से आप यहाँ पे x की यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, लाइक आप हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डिपेंडेंट वेरिएबल निकालोगे, राइट। x की वैल्यू यहाँ पे 0 है और प्लस उसमें आप 1 ऐड किया, y की क्या वैल्यू होगी, इट विल बी 1। सेम अगर यहाँ पे आप 1 की वैल्यू ऐड करोगे, ठीक है, और यहाँ पे लेट से y की वैल्यू क्या होगी, y विल बी इक्वल्स टू 2, ठीक है। सो दिस इज हाउ calculate a graph, or this is how you draw a graph, okay। Going on to the next slide। See, applications of straight line in economics, it basically help us to analyze the demand and supply curves. It helps us to understand the cost function, and then it finally helps us to visualize the linear growth and decline in economic data। So yeah, shit, yeah, let's do it again, that's totally fine, ठीक है। तो ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ठीक है। दिस इज सम इक्वेशन, ठीक है। ये कोई भी आप पॉइंट ले लो, लेट से ये आपने पॉइंट लिया, ठीक है। यहाँ पे आप स्लोप कैसे निकालोगे, m इज इक्वल्स टू del y ओवर del x, ठीक है। तो आप ये देखो कि यहाँ पे x के कोई भी वैल्यू पे, ठीक है, y के कोई भी वैल्यू पे x आपका हमेशा 2 ही रहने वाला है, ठीक है। जैसे y का वैल्यू वहाँ पे 1 ले लो, यहाँ पे 10 ले लो, ठीक है। इट इज ऑलवेज गोना बी 2, लाइक x का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, y आप कोई भी वैल्यू लो, ठीक है, x आपका 2 रहने वाला है। आपका क्या होगा, इट विल बी माइनस 100 बाई एनीथिंग माइनस 100 बाई, और ये आपका क्या होगा नीचे में 2 माइनस 2, ठीक है। और ऊपर में आप कुछ भी कर लो, आप अभी के लिए यहाँ पे डेल्टा वाई ही लिख लो, ठीक है। विच इज कुछ भी हो सकता है, माइनस 100, 100 माइनस 10, 1 माइनस 0, ठीक है। दिस विल बी डेल्टा, नीचे का वैल्यू क्या हो गया, इट हैज कम टू बी 0। सो आपका ये किस तरह का वैल्यू होगा, 1 बाई 0, राइट। आपका क्या होगा, क्या होता है, या 1 नहीं होगा तो लेट्स से n बाई 0 कुछ भी होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इन्फिनिटी। तो इसका स्लोप क्या हो गया, इन्फिनिट स्लोप हो गया। इसे बोलते हैं दैट एनी लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस विल हैव एन इन्फिनिट स्लोप, ओके। तो आप अगर आप इसका इक्वेशन लिखोगे तो x इक्वल्स टू 2 लिखते हो, ठीक है।
the value of m will be infinity. Okay, so that is all. We have explained all what a line is, how can you calculate the slope intercept form, how to calculate slope of the formula, and we have also discussed how the lines are being used in economics data. So that was all for the day, and thank you.